ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਚਿਤਵਾਨ ਨੀਤ। ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ। ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ, ਹੋਏ ਰਹਾ ਸਦ ਤੂਰ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀਆ, ਵੇਖੋ ਸਦਾ ਹਜੂਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ, ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਸਗਲੇ ਅਵਰਦਾ ਜੀਓ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ, ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਸਗਲੇ ਅਵਰਦਾ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ, ਸਤਸੰਗੀ ਜਣੋ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਉਪਰੰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਲਵਾਈਏ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਰੀਏ ਬੁਲੰਦ। ਉਪਰੰਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ,
हर ध्याइयै सगल अवरदा जियो। नाम औखद मोको साधु दिया। किल विख काटे निर्मल थिया। आनंद भयानिक सी सब पीरा। सगल विनाशे दरदा जियो। आनंद भयानिक सी सब पीरा। सगल विनाशे दरदा जियो। वाहिगुरु। ये पवित्र बचन पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज छतर चवर तख्त दे मालक हलत पलट के रखियक सतगुरु धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दे उचारण किए हुए हैं। सतगुरु पातशाह जी गुरु की महिमा ते नाम की महिमा दसदे आ रहे हैं पिछले कई दिनों तो। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਦਿਲਪ ਕਰੈ ਚਾਤਰ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਉਸ ਵਿਰਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਵਿਰਾਗ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਉੱਤਮ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰਾਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਾ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ, ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਜੇ ਤਨ ਬਿਰਹੁ ਨ ਉਪਜੈ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਨ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਉੱਭਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਰਾਗ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਦੇਖਦਾ, ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰਾਗ, ਵਿਰਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਚਨ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਸਾ ਰੁੱਤ ਸੁਹਾਵੀ ਜੇ ਤੁਧ ਸੰਭਾਲੀ, ਸੋ ਕੰਮ ਸੁਹੇਲਾ ਜੋ ਤੇਰੀ ਘਾਲੀ, ਸੋ ਰਿਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਜਿਤ ਰਿਦੇ ਤੂੰ ਉੱਠਾ, ਸਭਨਾ ਕੇ ਦਾਤਾਰਾ ਜੀ। ਸਾਈ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਵਿਹਾਵੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬਲਬਲੇ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਦੋਹਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿ ਥਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਨਿੱਧ ਸਿੱਧ ਰਿੱਧ ਹਰ 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 ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ, ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ। 3 ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ, ਨਿੱਧ ਸਿੱਧ ਰਿੱਧ। ਜਿਹੜੀ ਰਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਟੋਟਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ।
थोड़े नूं वधा लैना, बहुते नूं घटा लैना, किणके तो राई तो पहाड़ बना देना, पहाड़ तो राई बना लेना। ये तिन्ना शरीरां दे विच तिन्ने चीज़ां वसदियां है ते तिन्ना थावां ते अगे लिखिया 3 वारी हर 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 मेरा। हिरदे विच भी हरि वस गया, सूखम दे विच भी हरि दा वासा हो गया, कारण दे विच भी हरि दा वासा हो गया। जिथे जाके कबीर साहब लिखते हैं हुण मैं रहा ही नहीं गा, तो करते तू भया मुझ में रहा न हूँ, जब आपा परका मिट गया जत देखो तत तू। हुण हर थां ते मैनू वो दिखाई दिंदा है, शरीर करके भी, सूखम करके भी, कारण करके भी। तो मेरे प्रीतम जी बख्शिश करते हैं, कल नाम की सिफत दस रहे सी, कहते जिस दे नाल जन्म पदार्थ गहर गंभीर है, इस जन्म रूपी पदार्थ का पता लग्या कि कितना डूंगा, कितना विशाल, कितना कीमती है। गुरमुखा नूं, ब्रह्म ज्ञानियों नूं पता लग्या ना मनुखा जीवन किड्डा कीमती है। जिन्हों नहीं पता लग्या उन्होंने कौडियां वांगू सिटता, नशियां दे राही, विषय विकारां दे राही, नशे खा खा के जीवन शरीर बर्बाद करके फेंक दिता, सिट दिता, खत्म हो गए, मर गए, टेढ़ियां जूना चले गए। उन्होंने कदर नहीं की। कदर किन्हां ने की? मानस जन्म दुलंभ गुरमुख पाया। गुरमुखा नूं पता लग्या कि दुर्लभ है, कीमती है। मानस जन्म दुलंभ गुरमुख पाया, इनू होर भी सोहना बनाओ। मन तन होए चुलंभ जे सतगुर पाया, ये होर भी सुंदर हो जाए जे गुरु नूं भा जाए। तो जेड़े गुरु नूं भा गए वो किड्डे सोहने बन गए। पहलां तां 5 प्यारियां की गल करिए। भाया कौन जिन्हें गुरु की गल मनी, इको आवाज़ मारी मैनू एक सिर चाहिदा है। तो वारी वारी सिर मंगिया तो 5 सिखां ने उठ के जिन्हां ने सिर पेश किया, लो मर्ज कट लो, तुहाडा ही आ, अज की ते कल की। तो उन्होंने 5 ने सीस कटे तो फिर उन्होंने अमृत छका के सुरजीत किया। ये दसिया कि अमृत दे विच पावर किन्नी है, इस नाम दे विच पावर किन्नी है। अमृत छका के सुरजीत करना भी नाम की पावर ही दसी है। उस बाटे दे विच नाम ही पढ़िया, नाम ही जपिया, नाम की ही कृपा पाई है नेत्रा राही। नानक नदरी नज़र निहाल किया। तो उन्होंने 5 नूं सतगुरां ने अपने प्यारे कहा जे उन्होंने भा गए। भाया उही जिहड़ा हुक्म मनेगा, हुक्म मनिया पाई है। तो इस तरह गुरु प्यारिओ जेड़े जेड़े उन्होंने भा जाते हैं उन्होंने आपदे बना लैंदा, ते जिन्होंने आपदे बना लैंदा उन्होंने वास्ते फिर किसी तरह की घाट नहीं। आप सवारे मैं मिलै, मैं मिलिया सुख होए फरीदा, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। उन्होंने पता लग्या कि मनुखा जन्म कितना कीमती है। कि मनमुखा ने रैन गवाई सोए कै, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्मै कौडी बदलै जाए। नाम न जानिया राम का मूड़े, फिर पाछै पछताहे रे। फिर मगरों अखीर ते जाते हुए पछताउंदे आ, जब शरीर त्यागदे आ। जिवें औरंगजेब अपने आप में बड़ा सियाणा, बड़ा भगत, बड़ा नवाजी समझदा सीगा, रिधियां सिद्धियां आ गईयां सी उहदे कोले, शरीर करके ओह मक्के भी जा आउंदा सीगा। सूखम दे नाल ही, सुरत दे नाल ही मक्के दा गेड़ा ला आउंदा रोज़। पर उस दे अंदर जिहड़ा गुरु वाला ज्ञान सी वो नहीं सी वसिया। वो तपस्वी हो गया सीगा, सारी दुनिया नूं इक्को रंग विच रंगण नूं फिरदा सी, भाव सारे मुसलमान ही होण। इस करके गुरु प्यारिओ वो धोखा खा गया और उस दे राज विच बेअंत जुल्म होया। जिस जुल्म के कारण उन्होंने लाहनतां पाईयां जफरनामे राही सतगुरां ने, ते शरीर छड्डण वेले वो पछताउंदा गया बई मैं जिहड़े काम लई आया सी वो तो पूरा होया ही नहीं। ना तो वो सारी दुनिया नूं मुसलमान बना सकिया, ना ही अपना आपा सवार सकिया। कबीर साहब जी कहते रास बरानी राखते, खाया घर का खेत। लोकां नूं संभालदा रहा, आप दा खेत उजड़ गया। भाव आप दी सवासां दी पूंजी खत्म कर ली, अपना आपा नहीं संभालिया।
कबीर अवर है को उपदेशते मुख में पर है रेत, रास बिरानी राखते खाया घर का खेत। आपदा खेत उजाड़ लिया, लोगों की संभालते संभालते। इस करके पातशाह कहते पहला अपने आपे नाल जुड़िए, गुरु कृपा करन। इस नाम की पावर पंजवें पातशाह जी कहते जन्म पदार्थ गहर गंभीर है, लाख कोट खुशियां रंग रावे, जो गुर लागा पाई जीओ। जिहड़ा गुरु के पैरी लग गया, भाव जिहड़ा गुरु वाला बन गया, उन्होंने लखां ही करोड़ां ही खुशियां आनंद उहदे हिरदे विच वस गया। वो हमेशा खुश रहिंदे आ, मस्त रहिंदे आ। जिवें इत्थे एक महापुरुष होए आ संत भुखड़दास जी, उन्हां दा जीवन जिन्हां ने वेखिआ वो हमेशा अपनी मस्ती विच ही रहिंदे सन। इस तरह जिन्हां ने उस दात नूं प्राप्त कर लिया वो मस्ती विच चले जाते हैं। उस मस्ती नूं सतगुरु अर्जन देव जी ने प्राप्त किया। गहर गंभीर अमृत नाम तेरा, ये शब्द की आखिरी पंक्ति सी कि तेरा नाम भी बड़ा विशाल है। गहर डूंगा, गंभीर हुंदा है गुप्त, जिहदे विच पता नहीं किन्ना कुछ होवे। जिवें सागर गंभीर आ, नदियां चलदियां बड़ा खड़का करदियां, पर सागर खड़का नहीं करता। नदियां भजदियां दिखाई दिंदियां, पर सागर तुरदा भी दिखाई नहीं दिंदा गा। उहदे थल्ले बड़ियां नदियां चल रहीआं। सागर दे हेठां पता नहीं किन्नियां धारां पानी दीयां वग रहीआं, पर उत्तों वेखोगे ऐ लगदा जिवें पानी खड़ा है। इस तरह ही परमेश्वर जिहड़ा है उहदे विच भी बेअंत सृष्टि वसदी है। पार ब्रह्म की देहम कोटक विष्णु महेश, कोट इंद्र ब्रह्मा किते रव सस करोड़ जलेस। परमेश्वर दे विच भी बहुत है, पर वो स्थिर है, गंभीर है, डूंगा है। उसका नाम भी उसा ही है, जैसा वो है वैसा ही उसका नाम है। जिमें जिहो जे बंदे लक्षण हुंदे आ, बंदे का नाम भी दुनिया उहो जिहा रख लैंदी है, चोरां दा चोर, ठग्गां दा ठग। तो इस करके मेरे प्रीतम जी कहते साधुआं नूं साधु कहंदे आ, गुरमुखां नूं गुरमुख कहंदे आ। तो गुरु कृपा करन पंजवें पातशाह जी कहंदे जदों मैनूं नाम मिलिया हो अमृतमई नाम, गहर गंभीर अमृत नाम तेरा, मुक्त भया जिस हृदय वसेरा, गुरबंधन तिनके सगले काटे, जन नानक सहज समाई जियो। उन्हां दे बंधन गुरु ने सारे कर दिते। वो जपदे जपदे सहजे सहजे परमेश्वर दे विच एकमिक हो गए। अज दे अगले शब्द विच पहला नाम की महिमा की, फिर अगले शब्द विच सानू गाइड करते हैं, संगत नूं गाइड करते हैं, सानू दसदे आओ तुसीं भी जप लिया करो। क्योंकि जिहो जिहा बंदा है उहो जिहा ही प्रचार करूगा। चोरां ने चोरियां दे तरीके दसने आ, ठग्गां ने ठगियां ने, गुरमुखां ने नाम जपण की गल करनी आ, कोई सतनाम श्री। इस करके गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते तुसीं भी जप लिया करो, मैं भी यही जपदा। कि माज महला पंजवा, प्रभ कृपा ते हर हर ध्यावो। जे तुहाडे ते प्रभु कृपा करे तो जपिया करो वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। इनू जपिया करो जे तुहाडे ते रब ने कृपा कीती है, क्योंकि ये कृपा ही है जिहड़ा सानू मनुख बनाया। प्रभु कृपा ते तुमरी कृपा ते मानुख देह पाई है। परमेश्वर की कृपा के नाल ही सानू ये मानस जामा मिलिया। मानुख कृपा तुमरी कृपा ते मानुख देह पाई है, देहो दर्श हर राया। हुण दया करके मैनू दर्शन भी दे दिओ। ते दर्शनां दा बहाना बनाउंदा गुरु दे राही। कहने पहला गुरु कोले हो के आ, गुरु दसूगा मैं किवें मिलूंगा। परमेश्वर दा पीए है गुरु, परमेश्वर दे नाल मिलाउण वाला गुरु विचोला है। पंजाबी दे विच कह दिओ गुरु दे राही ही समझ आउंदी है परमेश्वर नाल मिलण दी। ते सानू सतगुरु अर्जन देव जी और अज 10 पातशाहियां दे ਸਰੂਪ गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ये कहते हैं सिखो तुसी भी जप लिया करो। प्रभ कृपा ते हर हर ध्यावो, प्रभु दया ते मंगल गावो। जे सिमरोगे ना
प्रभु ने दया करनी है, तुहाडे अंदर मंगल हुंदे आ, खुशी दे गीत जिवें विआह च गाए जाते हैं। विआह वाले घर में जिहड़ा माहौल बनिया वो खुशियां दा है, उत्थे सारे खुश है, बच्चे भी, बुढ़े भी, जवान भी, इस्त्रियां भी, मनुख भी, सारे खुश है, क्योंकि उस घर दे विच भी एक बच्चे नूं पति परमेश्वर मिलण वाला है। ते जदों असीं हरि नूं सिमरांगे, साडी आत्मा रूप बच्ची नूं पति परमेश्वर मिलण वाला है। को सतनाम श्री, तां इधर भी फिर खुशियां दे गीत गाए जाणगे, पर शर्त है पहला उहनूं याद करो, मालक नूं सिमरो। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो। प्रभु दया ते मंगल गावो, प्रभु की कृपा नाल उहदे खुशी दे गीत गाया करो। ते गाऊगा कौन? केवल जीभा नहीं, थोड़े कन भी गाउणगे, थोड़ियां अखां भी गाउणगियां, थोड़ी जीभा भी गावेगी। इत्थों तक के पैर दे गूठे तो लैके सिर दे जूड़े तक साडा रोम रोम उहनूं गावेगा, शुक्रिया निकलेगा, धन्नवाद निकलेगा उस परमेश्वर दे परथाए, परमेश्वर दे प्यारे गुरु संतां महापुरुषां दे परथाए साडी अंदरों उहदी सिफत निकलनी चाहिदी आ। तां ते प्रभु दया ते मंगल गावो, मंगल हुंदे आ खुशी दे गीत। आओ गुरु ने दया कीती है, आपां उहदे गीत गाइए, उहदी सिफत सलाह करिए। चाहे नितनेम करना, चाहे कीर्तन करना जां सुनना, चाहे कथा करनी जां सुननी, असीं प्रभु की सिफत सलाह कर रहे हैं। तो पातशाह जी कहते आओ उहदी सिफत सलाह करिए भाई। प्रभु दया ते मंगल गावो, गाया करो। महाराज किन्ना चिर गाइए? कोई टाइम बनिया होया? सुबह शाम गाने आ, दोपहरी नहीं गाने, रात नूं नहीं गाने, कदों क गाइए? हुण असीं रहरास करते हैं, शाम का पाठ, एक नाम है इहदा रहरास। इहदा अर्थ है उस रस्ते की पूंजी जिथे कल नूं जाना है, क्योंकि मौत जिहड़ी है ये पता नहीं कदों आ जाए, तो सुत्तियां पियां भी मौत हो जाती है, कईयां दी तड़के उठते ही नहीं। इस करके गुरु साहब सारियां नूं कहंदे आ, वो रात नूं अपने सुरती दे खजाने विच नाम दा पैसा, नाम दी पूंजी पा के रख, पता नहीं रात नूं सद्दा आ जाए। निहंग सिंघां दा बड़ा सुभाਅ है अनोखा। कहंदे एक निहंग सिंह दरख्त ते चढ़न लग्या, दरख्त ते चढ़ीदा है, घट तो घट समान होवे, नाल पैर नंगे होण, पर वो निहंग सिंह दे वड्डी सरीसा पाई है, मोढे ते बरछा टंगे है, तीर कमान टंगे है, भत्था टंगे है, पैरों में जुत्ती पाई है, चढ़ चलिया दरख्त ते। दूजा कोले खड़ा मनुख कहना बाबा वाधू समान तो ला दे, पहला अड़ जूगा किते। कहने चुप कर जा जी, उत्तों ही सद्दा आ गया, गाह गया नूं मुड़ के समान चक्कन आऊँगा, मैं तो अं जाऊँगा। कोई भाव यह है, ख्याल भी परमेश्वर पता नहीं कदों बुला लवे, कित्थे बुला लवे। ये उहदी सोच आ कि परमेश्वर की पता दरख्त ते बैठिया नूं ही जिहड़ा है सद्दा दे दे भी आ जा सिखा। तो ये ख्याल है कि वो परमेश्वर कदे भी सद्दा दे सकता है। फिर महाराज कदों नूं याद करिए? कहने जब मौत का टाइम नहीं तो सिमरन का भी कोई खास टाइम नहीं, हमेशा जपना चाहिए। रहरास का टाइम अपना शाम का रखिया है, तो टाइम की रखिया भला? सूरज छिपदे दे नाल। सूरज छिपदे दे नाल क्यों रखिया भला? क्योंकि साडा मन जिहड़ा है इहनूं सूरज पुत्र भी कहंदे हैं। भाव साडा मन जिहड़ा है ये सूरज दे चढ़न दे नाल इहदियां किरणां खिंडदियां, भाव इहदियां लहरां, इहदियां तरंगां, इहदियां सोचां, इहदे फुरने खिड़ने शुरू। जिवें जिवें दिन चढ़दा जांदा, देखो आपां कामां कारां च खचत हो जाने आ, भज लैने आ, चलो भी आ करिए वो करिए, दिन चढ़ गया। पर जिवें जिवें दिन छिपना शुरू हुंदा, साडा मन इकट्ठा होण लग जांदा, फुरने घटने शुरू हो जाते हैं, और दिन छिपदे असीं अपने वापस टिकाने ते पहुँच जाते हैं। तां ते रहरास का समा जिहड़ा शाम का तां रखिया सूरज छिपदे नाल, क्योंकि उदों मन साडा इकट्ठा होया हुंदा, उदों नितनेम कर शाम का, ते सवेर का सूरज चढ़न तो पहला क्योंकि उदों भी इकट्ठा हुंदा। तो रहरास का मतलब है
उस रस्ते की पूंजी जिथे कल नूं शरीर छड्ड के जाना है, वो पूंजी की है? हर कीर्तन रह रास हमारी, हरि की सिफत ही मेरी उस रस्ते की पूंजी है। तो इस करके मेरे प्रीतम जी कहने आओ उन्होंने जपिया करो। महाराज कदों कदों जपीए, कोई टाइम रखिया? कहने नहीं, उठत बैठत सोवत जागत, उठदियाँ बहदियाँ सौन लगिया तड़के जाग आ गई, मूँह चों निकले धन गुरु नानक वाहिगुरू परमेश्वर का नाम निकले उठन सार तुहाडे। जे तुसी ऐसा सुभाव बना लिया, सुत्तियां पियां दा आपे चलाऊगा, सुत्ते पियां दा भी जपी जाओगे। ये तुहाडी आदत बननी चाहिए है। जब मन नूं स्वाद आउण लग पिया, शरीर सुत्ता पिया होगा लेकिन मन नहीं सौंदा। देखो ना सुपने विच भी किधरे तुरिया फिरदा है, आपां नूं देखदे आपां। इस करके जे मन की आदत बन गई फिर 24 घंटे जप सकता है, गुरु जपावेगा। उठत बैठत सोवत जागत, हर ध्याईऐ सगले अवरदा जियो। अवरदा हुंदी है जिंदगी, जीवन, उम्र। इस करके उस नूं आपां हर वेले सिमरिए, उठदियां बहदियां सौंदियां जागदियां चलदियां फिरदियां। प्रीतम का बचन है ना, पैसे वास्ते भी तो बंदा भज दौड़ करता ही है ना, उद्यम करता ही है ना। सारे जने आपो अपनियां नौकरियां ते उद्यम करके जाते हैं, तनख्वाह मिलूगी। इस तरह ही उद्यम करेंदे आ जियो तो कमावदे आ सुख पुंज। तो माया दे वास्ते भज दौड़ करदा कि सुखी वसूंगा, सुख पुंचूंगा, सुख भोगूंगा। इस तरह ही सिखा ध्याए दियां तू प्रभु मिल। दोने पक्ष तेरे बराबर चलने चाहिए है। दो पैरों ते असीं चलते हैं, दोने सही होण। इस तरह उद्यम करेंदे आ जियो तो कमावदे आ सुख पहुँच, ध्याए दियां तो प्रभु मिल। जिहड़ा जरूरी काम है भी नाल नाल करदा रह जिंदगी दे विच। ध्याए दियां तो प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत, हर ध्याईआ सगल अवरदा जियो। सारी उम्र ही सिमरो। देखो बाबा फरीद का आखिरी समा, और आखिरी समय के आखिरी सलोक उन्होंने की कहते हैं? कागा करंग ढंडोलिया सगला खाया मास, ये दोए नैना मत सोहियो फिर देखण की आस। कागा चूंड ना पिंजरा वसै तो उडर जाओ, जित पिंजरा मेरा सौ वसै मास ना तिद्दू खाओ। ओना चिर ना खाओ इसनू जिन्ना चिर मैं ते मेरा मालक विच बैठे हाँ, जदों छड्डता फिर भावें खा लिओ। तो बाबा फरीद जी कहते हैं कि उस नूं अखीर तक सिमरो। नानक सतगुर भेटिया ऐसी होवै जुगत, हसंदियां खिलंदियां पहनंदियां खावंदियां विचे होवै मुगत। सानू गुरु नानक ने बड़ा सौखा सहज रस्ता दस्सिया। गृहस्थी जीवन नूं छड्ड के जंगलों में जाण की लोड़ नहीं है। जंगलों विचों नहीं मिलता गा, तुहानूं घरे रहिंदियां भी मिल सकता है। बल्कि गृहस्थियां नूं तां बहुत थोड़ी मेहनत करिया मिल जूगा, क्योंकि उन्होंने विचों किसी नूं कुछ देना नहीं गा। जो करनगे आपदे वास्ते करनगे। ते जिहड़े गुरु प्यारो जंगलों में जाणगे, उन्होंने पाउण वास्ते जदों शरीरां दीयां लोड़ां पैदा होईयां ते उन्हां नूं पूरीआं करन वास्ते वो गृहस्थियां दे वार 'च ही आउणगे। डाली मंगण आउणगे, कपड़ा भी उत्थों मिलूगा, उत्थों लोड़ां पूरीआं होणगीआं। फिर गृहस्थियां नूं कुछ देना भी पऊगा उन्हां नूं। इस करके फिर उन्हां दी भजन बंदगी चों हिस्सा परमेश्वर ने कन्वर्ट करके गृहस्थियां दे खाते 'च पा देना, जिन्हें उन्होंने सेवा की। कोई सतनाम सी। ਇਹਦਾ मतलब गृहस्थी जिहड़ा आप करूगा वह भी ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ रह जाऊगा, जिहड़ी सेवा करू किसी की ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी ਉਹਨੂੰ मिल जाऊगा कमीशन। परमेश्वर वालों आटोमैटिक ही दिता जाऊगा। आपे सेवा लाइयन आपे बख्श करे, सबना का माँ प्यो आपे आपे सार करे। ये परमेश्वर ने देखना है। उन्हें आप ही असी उन्हां दीयां लोड़ां पूरीआं करांगे लोड़वंदां दीयां, तां परमेश्वर उन्हां दी भजन बंदगी दे विचों कुछ परसेंट उस गृहस्थी के खाते में लिख दूगा, लै भी इन्हें आ सेवा की आ। क्योंकि देना तो पैना है। लए दिते बिन रहे ना कोई, लैन देन ही चलता सारा। धी पुत का, माँ प्यो का, पति पत्नी का, बच्चियां का, माँ प्यो नाल।
ਇਹ ਸਭ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈਏ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰੀਏ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਹਰ ਵੇਲੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੋਕੋ ਸਾਧੂ ਦੀਆ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਬੀਰ ਸਾਧ ਜੋ ਮੋਏ ਮਿਲਿਓ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧੂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਿਲੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਧ ਜੋ ਮੋਹ ਮਿਲਿਓ ਤਿਨ ਲੀਆ ਅੰਚਲ ਲਾਏ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ। ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ, ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਲਾਗਤ ਹੀ ਪੋਏ ਗਿਰ ਪਰਾ, ਪਰਾ ਕਰੇਜੇ ਛੇਕ। ਗੋਲੀ ਵੱਜਦਿਆਂ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਜਦ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਇਉਂ ਲਾਗਤ ਹੀ ਪੋਏ ਗਿਰ ਪਰਾ, ਭਾਵ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਕਾਰ ਭੱਜ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੈ ਬਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ, ਲਾਗਤ ਹੀ ਪੋਏ ਗਿਰ ਪਰਾ, ਪਰਾ ਕਰੇਜੇ ਛੇਕ। ਮਕਸਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪੰਜਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੋਕੋ ਸਾਧੂ ਦੀਆ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਔਖਦ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਸਾਧੂ ਸ਼ਬਦ, ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ, ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਆਹ 3 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਵੀ ਲਿਖ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦੂਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹ 3 ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਏ ਆ ਬਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ, ਇਹ 4 ਪਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਔੜਨੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੋਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚੜਾਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ ਪੁੱਤਰਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚੌਥਾ ਦੱਸ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਬਣੇ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੜਫਣਾ ਬਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲ ਚੱਸਾ ਨ ਵਿਚਰਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ। ਹੋ ਘੋਲੀ ਜੀਓ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਮ ਔਖਦ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਖਦਾਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੋਕੋ ਸਾਧੂ ਦੀਆ। ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੈਦ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭੋਲਿਆ
सत्संग करिया कर, मैनू तू भी बीमार लगदा है। क्यों मैनू की होया, मैं तो चंगा भला। कहते नहीं नहीं, तेरे भी पेट च दर्द हुंदा है। कहना ना जी कदे नहीं होया। कहने तैनू उल्टियां लगदियां। कहना ना। तेरे तेजाब बनता, तेरा हिरदा सड़दा है। कहना जी नहीं। कहने मैं रस्सा किवें सड़दा फिर, जो तू दूजे वैद नाल ईरखा करदा है। कहो सतनाम सी। एक वैद दूजे वैद नाल, सुनियारा सुनियारे नाल, दुकानदार दुकानदार नाल ईरखा जरूर माड़ी मोटी पैदा हो जाती है जो गुआढ़ी तकड़ा हो जाए। कहो सतनाम श्री। तो इस करके जदों बंदा ईरखा करता है तो ये अंदरों सड़दा है, साड़ पैंदा। एक तेजाब ऊँ बनता खाधे पीते नाल, एक ईरखा नाल भी बनता। कहो सतनाम श्री। एक ढिड दुखदा गुआढ़ी दी, अपने वर्गे की वडियाई देख के, तरक्की देख के। एक उल्टियां लगदियां निंदा चुगली करके। जिवें खाधा पीता निकल जावे तो जिहड़ा खाधा सी तो निकल ही गया, होर भी ताकत लै जांदा अंदरों कढ के। कमजोरी आ जाती है बंदे च, जो ना कुछ पचे। तो जदों बंदे दे अंदर किसी की वडियाई ना पचे, उदों ये निंदिया करदा। कहो सतनाम। निंदिया करदा फिर पचदा नहीं। तो इस करके जिहड़ी भजन बांदी की माड़ी मोटी ताकत हुंदी है सेवा की, वह भी खत्म कर लैंदा निंदिया करके, चुगली करके। कहो सतनाम श्री। निंदा भली किसे की नाही, मनमुख मुग्ध करन। जदों वैद नूं ये बीमारियां दसियां ना, वैद तो पैरी पै गया, दवाई देन आया सी। कहना जी ये तो बीमारी फिर मैनू की सारियां नूं ही है। कहो सतनाम श्री। बस यही गल है मित्रा। वैद बुलाया वैदगी पकड़ ढंडोले मां, भोला वैद न जानी कर कलेजे माहे। तो फिर वैद कहना जी कोई दवाई, कहते वैसे अलग अलग दवाइयां बहुत है, कोई एको ही पुड़ी दे दो सारियां बीमारियां हट जान। फिर सतगुरां ने उस वैद नूं गुरमंत्र दिता, सिमरन दिता, और नाल हुक्म दिता कि सत्संग की दुकान पर जाया कर, उत्थे जाके दवाई मिलती है, उत्थे बह के खाया कर, सत्संग करिया कर, ये तेरियां सारियां बीमारियां हट जाणगियां। नाम औखद मोको साधु दिया, किलविख काटे निर्मल थिया। हुण मेरे अंदर किलविख हुंदे आ पाप। किल हुंदा है किसी दे मेख ठोक दिओ, किसी दे किल मारो दर दिंदा, ते विख की हुंदा जहर। भाव जिहड़े दुखदाई चीज़ां हन मेरे अंदर, हंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये पंजे जने मैनू पीड़ित करते सी, दुखी करते सीगे। गुरु ने जदों ही नाम की दवाई दी, इन्हां पंजां ने खत्म होना शुरू किया। किलवे काटे निर्मल थिया, आनंद भया निकसी सब पीरा। पीरा भाव पीड़ा, वो खत्म हो गई सारियां, दर्द खत्म हो गए। जदों मैनू सतगुर ने ये नाम की दवाई दी, नाम जपदियां जपदियां फिर ज्ञान हो गया। ज्ञान होने तो बाद बंदा पुठे पासियों हाथ खिंचन लग्या, पुठे पासियों पैर रोकन लग्या, गलत दिशा ते जानो रुक गया, तो वह दर्द खत्म हो गए। हंकार भी पीड़ दिंदा, काम वासना भी बंदे नूं तपाउंदी है। इस तरह पातशाह ने कृपा की। काम क्रोध लोह मोह बिनस जाए अहमेव, नानक पर प्रभ शरनागति। तो इस तरह हे सतगुरु कृपा करो, इन्हां पंजां नूं खत्म कर दे। मैं तेरी शरण विच आया, हे गुरदेव, हे मालिक, इन्हां पंजां दा खात्मा कर दिओ। ते सतगुर ने फिर पुड़ी दिती नाम दी, इन्हां पंजां दा खात्मा होना शुरू होया। प्रीतम जी कहंदे अंत भया निकसी सा पीड़ा, पीरा सगल विनाशे दर्दा जियो। वो सारे दर्दां दा खात्मा हो गया। अगे कहने जिसका अंग करे मेरा प्यारा, अंग की है, गले ला लेना, बाह फड़ लेनी। जिहदा पक्ष पूरना, जिहदा गुरु नानक पक्ष पूरे, उन्होंने जमदूत किवें फड़ सकते हैं। कोई सतनाम सी। जिन्हां दा मेरा प्यारा परमेश्वर सतगुरु अंग करदा है, पक्ष करदा है, उन्होंने धर्मराज भी हथ बन के नमस्कार करदा।
ਧਰਮ ਰਾਏ ਐਸੇ ਚਵੈ ਕੀਤੋ ਭਵਨ ਪਨੀਤ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੱਲ ਆ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਝੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਓ। ਪਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਐਸੇ ਚਵੈ ਕੀਤੋ ਭਵਨ ਪਨੀਤ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਜਿਸਕਾ ਅੰਗ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰਾ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਭੱਜ ਦੌੜ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਦੇ ਕਲੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ, ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰਤਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰਤਾਰੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ, ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰਤਾਰੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਸਭ ਵਸ ਕਰ ਦੀਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਕਰ ਦੀਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਨੇ। ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਭਜੋ ਭਗਵਾਨ, ਤਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਭਜੋ ਭਗਵਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੀਨੋ ਦਾਨ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦਾਤ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਿਆਰ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਦਇਆ ਰਾਮ ਤੋਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਬਣ ਗਏ ਪੰਜੇ ਪਿਆਰੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਝੱਫ ਗਏ ਵੀ ਯਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਤਾਂ ਭਰਮ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਰਾਮ ਤੋਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਜਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਵੱਢ ਲਓ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਉਹ ਹੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜੇ ਪਿਆਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜੇ ਰਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰਵੰਸ ਹੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਹੀ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੱਟੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਨਿਕਸੀਸਾ ਪੀਰਾ, ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੇ ਦਰਦਾ ਜੀਓ। ਜਿਸ ਕਾ ਅੰਗ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ,
सो मुक्ता सागर संसारा, वो संसार समंदर तो पार कर दिता। सत करे जिन गुरु पछाता, जिन्हों ने गुरु नूं सच करके पछाण लिया भी बस इहो ही परमेश्वर है। मेरा रूप ग्रंथ जी जान जाते जाते 10वें पातशाह कह गए सानू कि मैं तो शब्द हाँ, तुसी भी शब्द हो। सिख भी शब्द है, गुरु ग्रंथ साहिब परमेश्वर भी शब्द है, गुरु भी शब्द है। तिन्नां दा साडा इक्को ही रूप है, दादा पोता ते पुत्र जिवें हुंदे आ। कोई सतनाम श्री गुरमुख नाद गुरमुख वेद गुरमुख रहा समाई। गुरमुख परमेश्वर शब्द विच भी है और वो परमेश्वर ग्रंथ साहिब दे विच विराजमान हो गया। ये वेद ग्रंथ ये भी उहदा रूप हो गया। शब्द विच भी वो है, शब्द भी उहदा रूप है। ये शब्द साडे अंदर चलदा है ते साडे विच सृष्टि विच भी वो समाया होया। कोई सतनाम। गुरमुख नादं शब्द वेदं ग्रंथ गुरमुख रहा समाई। गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा। इस करके सिख दे वास्ते गुरु ही सब कुछ है। मेरा गुरु ही ईश्वर है, गुरु ही गोरख है, गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, मेरी गुरु ही माई है। गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वर, गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा, गुर पार्वती माई। मैनू गुरु साहब ने गल समझाई है, जे हों जाना आखा नाही, पर मैं तुहानू किवें समझावां। बड़ी गुप्त गल है, सूखम गल है जिहड़ी मैनू गुरु ने समझाई है, मैं तुहानू किवें समझावां। मेरे कोल शब्द नहीं है। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे ते क्या कहिए। हुण मिठे दे किहड़े अखर बनणगे? मिठा तो सोनू खा के फिर पता लगू भी किहो जिहा हुंदा। कोई सतनाम श्री। मिठे बारे कौन दसे? गूंगा तो की बोलण वाला भी नहीं दस सकदा। मेरे प्रीतम जी कहते महाराज जे हों जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई, कहा नहीं जा सकता। कहन नूं तां मैं चाहना मैं तुहानूं दस देवां, कह देवां, पर कहा नहीं जाता मैथों। गुरा एक दे बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। गुरु ने एक सूखम शरीर की गल समझाई। देह एक देह साडे बाहर है, एक कपड़ा है सूखम दा, ते सूखम दे अंदर है। सूखम मूर्त नाम निरंजन, काया का आकार, सखियां मन संतोख उपजै, देना कै विचार, दे दे मंगै सहसा गूणा, सोभ करे संसार। इस तरह पातशाह ने उस सूखम की गल जदों समझाई मैनू, तो मैं हुण किवें दसां। पर मैं बेनती करदा सतगुरु मैनू हुण ये गल हमेशा याद रहे, मैं कदे इस गल नूं भुल्लां ना। ये भी किरपा कर दिओ मैं याद रखां जिहड़ी तूं मैनू गल समझाई आ। प्रीतम जी कहंदे सत करे जिन गुरु पछाता, सो काहे को डरदा जियो। जिन्हां ने गुरु नूं परमेश्वर मान लिया उन्हां डर खत्म हो गए। उन्हें पता लगे भी साडा गुरु सब तो उत्तम है, समर्थ है, सर्व कला समर्थ है। प्रीतम जी बचन करदे हन बख्शिश, ये भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा, तेरो जन होए सोए कत डोले, तीन भवन पर छाजा। ये राजे मेरा की बिगाड़ लैणगे। नामदेव नूं पता है कि राजे सुल्तान ने मैनू बन लिया, मैनू मार नहीं सकता गा। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, परमेश्वर ने आया नामदेव ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਾਂਗੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਈਆਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮਈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਮਰ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਸਾਂਗੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੱਡੂ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 14 ਵੱਡੀਆਂ 3 ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ,
और सरकारी ਜਿਹੜੇ फौजी है वो मौत तो डरते भी है तो जितना भी चाहते है। डरन वाला कदे जित नहीं सकता। कोई सतनाम। इस करके सतगुर सारे जंग जितते है तो शाहजहां वर्गे या औरंगजेब वर्गे उन्होंने फौजा सारे जंग हारदियाँ क्योंकि उन्होंने हजे मौत का खतरा खत्म नहीं सी होया। गुरु के सिंघां दा मौत का खतरा गुरु ने खत्म करता भी तुसी मर के मरदे नहीं गे मेरे नाल ही रहोगे। कहो सतनाम सी। फिर वो केड़ा सिख है जिहड़ा गुरु नूं छड्ड के पासे जाना चाहुंदा होवे तां शहीदियां करनियां प्रवान करनियां उन्होंने। सो काहे को डरदा जियो जब ते साधु संगत पाए। जदों दी मैनू गुरुआं दी गुरु दे प्यारियां दी साधुआं दी महापुरुषां दी संगत मिलण लगी आ। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे जदों दी मैनू गुरु दे प्यारियां दी बाबा बुढ़ा जी वर्गे सिखां दी भाई गुरदास जी मामा जी ये महान सिख है गुरु नानक दे घर दे कहंदे जदों दी मैनू इन्हां दी संगत मिलण लगी आ। गुर भेट तहों गई बलाए मेरियां सारियां बलावां भज गईयां। मेरे सिर ते हुण कोई खतरा नहीं कोई दुख नहीं कोई बला नहीं कोई जमदूतां दा खतरा नहीं गा। जमदूत भी परे होके गल करदे आ। गुरु अमरदास महाराज कहंदे आ ना गोइंदवाल च जमदूतां नूं धर्मां नूं कहंदे जिन्ना चिर असीं इत्थे बैठे आ गोइंदवाल च कोई भी बच्चा माँ प्यो तो पहला नहीं मरना चाहिए। धर्मराज नूं इह गल मन्नणी पई। कहो सतनाम सी। तईए ताप नूं पिंजरे विच बंद कर लिया कहन लग्या जिन्नियां इत्थे बीमारियां गोइंदवाल चों बाहर कढ दिओ साडे हुंदे इत्थे कोई बीमारी नहीं आउणी चाहीदी। कहो सतनाम सी। 22 साल प्रीतम ने उत्थे ड्यूटी की 22 साल उत्थे रह करके चरण पा के पवित्र संसार नूं तारिया। उन्हां दिनां दीयां घटनावां गुरु साहब ने तां हुक्म देता धर्मराज नूं ते धर्मराज नूं भी मनदा है। मेरी बांधी भगत छुड़ावे बांध है भगत न छूटै मोहे। भगतां दा प्यार च बन्निया होया रब है पर धर्मराज दा बन्निया होया नहीं है। को सतनाम सी। धर्मराज हुक्म दे अंदर है। प्रीतम जी कहंदे जब ते साधु संगत पाए गुर भेट तहों गुरु नूं मिलदियां ही हों मेरी हंकार दियां बलावां काम दियां बलावां क्रोध दियां बलावां खत्म ही हो गईयां। हों गई बलाए सा सा सर गावे नानक। हुण तां हर वेले ये नानक इत्थे कक्के औंकड़ लाया। कक्के औंकड़ लाउण दा मतलब है अर्जन देव जी अपने आप नूं कह रहे हैं। कहो सतनाम सी। ये नानक दा पंजवां सरूप गुरु अर्जन देव जी कहंदे ये नानक हुण हर वेले उहनूं जपदा है। सा सा सर गावे नानक सतगुर ढाक लिया मेरा पड़दा जियो। सतगुर ने मेरा पड़दा ही ढक दिता। पड़दा किवें ढकना है पलकां नूं नीवियां करके ये पर्दे पाए हुए ने ते किसी ने तो पर्दे समार के देते किसी के पर्दे खुले हुए है पर गुरु ने इस नूं ढकिया। तो इस तरह गुरु ने किहड़ा पर्दा दिता प्रेम का पटोला। प्रेम पटोला तैसै दिता ढक्कन को पत मेरी। मेरी इज्जत रख लई नाम दे पर्दे नाल सिमरन दे पर्दे नाल। प्रेम पटोला तैसै दिता ढक्कन को पत मेरी। दाना बीना साई मैंडा सार ना जाना तेरी। पर एक गल सुन ला मैनू इन्ना पता तैंडा सिमरन हब किछ लादम। तेरे सिमरन दे नाल सब कुछ मिलता है ते नाले बिखम न डिठम कोई ते दुख नहीं कोई आ सकता। जिस पत रखे सच्चा साह मैनू इन्ना मान है जिहदी तू इज्जत रखदा है उहदी बेइज्जती कौन कर सकदा। कहो सतनाम। जिस पत रखै सच्चा साहिब नानक मेट ना सकै कोई। उन्हां दी कोई बेइज्जती नहीं कर सकता। गुरु किरपा करन इसी पंजवें पातशाह जी दे वल्लों सानू उपदेश बई तुसी भी जपिया करो। प्रभ कृपा ते हर हर ध्यावो प्रभु दया ते मंगल गावो। उठत बैठ सोवत जागत हर ध्याईए सगल अवरदा जीओ। अगला शब्द फिर इसे लड़ी नाल जोड़ते हैं। किवें जपना की करना है कित्थे रहिंदा वो परमेशर। ओत पोत सेवक संग राता। जे तू जपेगा वो तेरे नाल ही रहन लग जूगा। प्रभ प्रतपालै सेवक सुख दाता। वो अपने बच्चियां नूं पालदा है। सेवकां दा सुखदाता परमेशर। पानी पखा पीसो सेवक है ठाकुर ही का आहार जियो।
प्रभु के प्यारियां की सेवा, संगत की सेवा भी परमेश्वर की सेवा ही है। होर परमेश्वर कित्थे वसदा? वे संगत हर भा वसै जी। धन गुरु नानक देव जी महाराज एक दिन करतारपुर नगर विखे पे ते पैरां ते झरीटां जिहियां वजियां ते लहणा जी कहने महाराज तुसीं अज किधरे गए नहीं, आ झरीटां जिहियां काहदियां वज गईयां? कहने यार ऐ कर तू इधर एक बकरियां वाला फिरदा अपने खेतां वन्नी नूं सद के लिया। कहने खेतां वन्नी गया लहणा जी, एक बकरियां वाला फिरदा, उन्होंने कहने भाई तैनूं गुरु साहब ने बुलाया। वो बकरियां वाला कोले लिआंदा सद के, गुरु नानक पातशाह ने पहलां तो प्यार किया उन्होंने। फिर कहने सिखा तू बाहली सोहनी बाणी पढ़ रहा सीगा सोहिला साहिब दी, ते मेरा जी किया मैं सुन के आवां, पर तू झाड़ियां विच फिरदा पढ़दा सीगा। मैनू बहुत चंगी लगी, मैं सुनने वास्ते आया ते आ मेरे झीटां जिहियां वज गईयां कंडियां दियां। ये बाणी रात नूं हत्थ मूँह धो के मंजे ते पै के पढ़ी दी आ। कोई सतनाम दोपहरे नहीं पढ़ी दी हुंदी, बाणी का टाइम चलो ये भी रखिया। वैसे परमेश्वर की सिफत सलाह है जदों भी की जाए ठीक है, पर सतगुरां ने कोई साडा सिस्टम भी बनाया सिੱਖੀ का, ये मुताबिक भी चलना। रहनी रहे सोई सिख मेरा, सो सह मैं तिसका चेहरा। रहत बिना ना सिख कहावै, रहत बिना दर चोटां खावै, गुरु किरपा करन। इस शब्द की विचार आप कल के दीवाना भी सरवण करांगे। बोलदियां ने एक अखर बाद घट हो जाते। सिख संगतां ते सतगुरु बख्शण योग है, बख्श लेना जी। समाप्ति करिए। बुलाओ फतेह पाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। राम कली महला तीजा आनंदिक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सह।